اور محنت کیجیے، عبارت پہ بھی غور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی نواقض الوضو، یہ فصل ہے وضو کے توڑنے والی چیزوں کے بیان میں۔ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا بیان آپ لوگ اس فصل میں پڑھیں گے۔ ینقض الوضو 12 شیئا، 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیز کل کتنی ہے؟ 12 چیزیں ہیں۔ اگر ان 12 چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز اگر پا لی جائے باوضو شخص کے لیے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر سے اسے نماز پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، سجدہ تلاوت کے لیے اسے وضو کرنا ہوگا۔ یا ہر وہ کام کے لیے جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے وضو کرنا ہوگا۔ کب؟ جب ان 12 چیزوں میں سے کوئی چیز پا لی جائے۔ اسی کو نواقض وضو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نواقض وضو۔ تو وضو کے توڑنے والی کتنی چیزیں ہیں؟ 12 چیزیں۔ 12 چیزیں۔ ما خرج من السبیلین الا ریح القبل فی الاصح، کہتے ما خرج من السبیلین، جو بھی پیشاب پاخانے کے راستے سے نکلے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ما عموم ہے، عام ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے اس میں پڑھے ہوں گے، کون کتاب ہے وہ، اصول الشاسی پڑھے ہیں نا؟ اصول الشاسی نہیں پڑھے آپ لوگ؟ نہیں پڑھے ہیں اصول الشاسی۔ اصول الشاسی میں خاص اور عام کی جو تعریف ہے اسی میں عام کی جو مثال دیا ہے تو وہیں پہ سمجھایا ہے۔ تو ما جو ہے نا یہ ما عمومیہ ہے۔ ما خرج، جو بھی کچھ نکلے، یعنی پیشاب پاخانے کے راستے سے کچھ بھی نکلے اس سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ الا مگر ریح القبل فی الاصح، صحیح قول کے مطابق آگے کے مقام سے پیشاب کے راستے سے جو ہوا نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ آگے کے مقام سے ہوا کا تو خروج ہوتا ہے لیکن کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، آگے کے مقام سے جب ہوا کا خروج ہوتا ہے تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو پیشاب پاخانے کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے مگر صحیح قول کے مطابق آگے کے مقام سے جو ہوا نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ دَمٍ، کہتے ہیں کہ ینقضُهُ، اور اس کو توڑ دیتا ہے۔ کس کو توڑ دیتا ہے؟ وضو کو۔ ولادت یعنی بچے کی پیدائش، یعنی کوئی عورت ہے باوضو ہے تو بچہ اگر پیدا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ من غیر رؤیتین، بغیر خون دیکھے ہوئے، یعنی بچہ جنی ہے، بچہ کی ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے لیکن خون بھی نہیں آیا، خون آ گیا تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اگر خون نہیں آیا، بغیر خون دیکھے ہوئے اگر ولادت ہو گئی ہے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون نکلا تو پھر ما خرج من السبیلین میں تو آ ہی گیا کہ آگے پیچھے کے مقام سے جو کچھ بھی نکلے تو جو کچھ میں تو خون بھی شامل ہے نا۔ لیکن اگر صرف ولادت ہو، بچہ پیدا ہو لیکن خون نظر نہ آئے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ولادت من غیر رؤیت دمین، بغیر خون کو دیکھے ہوئے بھی ولادت اگر ہوئی ہے تب بھی وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّنْ غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ سے، کن دونوں کے علاوہ سے؟ یعنی سبیلین، پیشاب پخانے کے راستے کے علاوہ سے اگر نجاست بہ جائے، یعنی بدن میں کوئی بھی حصہ ہو جس کا یعنی پاک ضروری ہے، اب وہ بہ گیا، جیسے ہاتھ ہمارا ہے، ہاتھ میں ہے نہیں، کوئی آدمی کچھ چبو دیا اس سے خون نکل گیا اور خون نکلنے کے بعد وہ بہ گیا اپنی جگہ سے، یا یہ کہ منہ سے کسی کو ہے نا پیپ نکلا یا کوئی گھاؤ سے پیپ نکلا، کوئی بھی چیز، یعنی نجاست اگر سبیلین کے علاوہ اگر نکلے تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی سبیلین کے علاوہ سے وہ نجاست جو بہنے والی ہو، نجاستن سائلتن، بہنے والی نجاست، من غیرہما، سبیلین کے علاوہ سے اگر نکلے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے قدمن، جیسے کہ خون نکل لیا، بدن کے کسی حصے سے نکلا لیکن سبیلین کے علاوہ سے۔ وقیہن، پیپ نکلا۔ وقیو طعامن او مائن، یا کھانے یا پانی کا پانی کی الٹی نکلی، قی، جیسے کوئی آدمی الٹی کرتا ہے تو کبھی کھانے کی الٹی کرتا ہے، کبھی پینے کی الٹی کرتا ہے نا،
पानी कभी बोकरता है, कभी है ना खाना बोकरता है, जानते हैं ना बोकरना, उल्टी करना। जी हाँ, तो ये सब भी अगर हो तो इससे वजू क्या हो जाता है, टूट जाता। टूट जाता है। कदमिन जैसे कि खून निकल गया, वक़ैहिन पीप निकल गया, वक़ै और कै निकला, किस चीज का कै, तामिन और माइन, खावा खाने और का हो पानी। या पानी का हो। औ अलकुन या बस्ता खून, बस्ता खून निकला यानी खून की गेठली निकल गई, जमा हुआ खून निकल गया। औ मिर्रतिन या मुंह से पीत निकला, पीत जानते हैं ना, जी बस वगैरह में जाइएगा, वो बदबू जो करता है उससे ही दिमाग घूमने लगता है और पीत निकलता है। और मिर्रतिन पीत निकल गया, इदा मलअल फम जबकि मुंह भर जाए, पीत से क्या हो जाए, मुंह मुंह भर भर। जाए, तब वजू टूटेगा। पीत से अगर थोड़ा सा लिए और थोड़ा सा फेंके उससे वजू नहीं टूटेगा, बल्कि पीत के लिए, पीप अलग है और पीत अलग है, ठीक है। पीप जो है वो गंदा होता है, वो जख्म वगैरह से निकलता है, और पीत जो होता है ये मन घूमने की वजह से वो मुंह के जरिए निकलता है। तो अगर पीत निकले और मुंह भर हो तो उससे क्या हो जाता है, वजह टूट जाता है। वजू टूट जाता है। और मुंह भर कब माना जाएगा, तो कह रहे हैं वह हुआ माला यंतबिकु अलैहिल फम, और वह यानी मुंह कब भरेगा, वह माला यंतबिकु अलैहिल फम इल्ला बितकल्लुफिन अलल असा, सही कौल के मुताबिक बगैर किसी तकलीफ के वो मुंह खोल ना पाता हो, यानी मुंह इतना भर गया है कि आराम से मुंह खोल नहीं पा रहा, बल्कि मुंह खोलेगा तो तकलीफ से मुंह खोलेगा। तो जब तकलीफ अगर लायक हो जाए ना तो समझिए कि मुंह भर गया है। जैसे आप भी मुंह खोल लेते हैं ना आराम से, कोई तकलीफ होती है मुंह खोलने में, नहीं। नहीं। अगर मुंह भरा है और मुंह खोलने में अगर तकलीफ होने लगे, जैसे मुंह में आप कुछ डालिए, चावल डालिए, कुछ डालिए मुंह में खाइए, तो कोई बोलेगा कि ये काम कर दो तो किसी के हाँ कर रहे हैं, यानी मुंह बोलेगा, बोली तो निकलेगी लेकिन तकलीफ से बोली निकलती है। तो जब भी तकलीफ की हैयत पाई जाए तो समझ जाइए कि मुंह भरा हुआ है, वो मुंह भरा माना जाएगा। मुंह कम भरा माना जाएगा जब बोला जाए तो बगैर किसी तकलीफ के न बोलने पाए, बल्कि तकलीफ के साथ बोला जाए, ठीक है। जी वहुआ माला यंतबिकु अलैहिल फम, और वह ये कि मुंह न खोला जाए, मुंह न खोला जाए, मुंह से बात न की जाए मगर तकलीफ के साथ, सही कौल के मुताबिक। तो जब तकलीफ के साथ मुंह से बात आप कर पाइएगा तो समझ जाइए कि मुंह हमारा भरा हुआ है, ठीक है। जी वयजमा मुतफर्रिकुल कै इदा इत्तहद सबबहु, और जमा किया जाएगा मुतफर्रिक कै को, मुतफर्रिकुल कै, मुतफर्रिक कै को यानी अलग अलग कै को, इदा इत्तहदा सबबहु जबकि सबब एक हो, जबकि सबब एक हो। जैसे मुतफर्रिक कै का मतलब क्या समझे, मुतफर्रिक कै का मतलब हुआ कि बिस्तर पे था, थोड़ा सा यहाँ उल्टी किया, फिर बिस्तर से नीचे उतरा, वहां थोड़ा उल्टी किया, और आगे बढ़ा, वहां जाके उल्टी किया, बाहर में गया वहां उल्टी किया, आंगन में गया वहां उल्टी किया, घर में गया वहां, तो कई जगह जाके थोड़ा थोड़ा उल्टी किया, ठीक है। जी और सबब मुत्तहिद है, सबब मुत्तहिद से मतलब यानी घर में जो उल्टी किया खाना ही वाला उल्टी किया है, बाहर में जो उल्टी किया वो एक ही तरह का खाना ही उल्टी हुआ है, बाहर में भी खाना ही का उल्टी, यानी एक ही के तरह का उल्टी हो रहा है। तो अगर मुतफर्रिक जगह पे कई किया है लेकिन एक ही तरह का कई किया है और उसको मिलाने से अंदाजे से लगेगा कि इससे मुंह भर जाएगा तो उससे भी वजू टूट जाएगा, ठीक है। और कई जगह किया है लेकिन एक जगह पानी वाला कई कर दिया, दूसरी जगह खाना का कई कर दिया, तीसरी जगह बलगम का कई कर दिया, लेकिन ये कि इतना कई नहीं किया है जिससे मुंह भर जाए तो वजू उसे नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक ही तरह का कई कई जगह किया और मिलाने के बाद एहसास होगा कि हाँ इतना से तो मुंह भर जाना चाहिए था, तो वजू टूट जाएगा। और कहेगा कि थोड़ा थोड़ा एक एक है नहीं, पीत अगर फेंका है तो उससे मुंह तो भरेगा नहीं, तो उससे वजू नहीं टूटेगा। खुलासा कलाम ये हुआ कि मुतफर्रिक कई को अगर जमा किया जाए और सबब मुत्तहिद हो, सबब मुत्तहिद का माना समझे ना, एक तरह का कई, एक तरह का कई, अगर सबब मुत्तहिद हो तो ऐसी सूरत में अगर मुंह भर के मुकाबिल हो जाए तो वजू से भी टूट जाएगा। वयजमा मुतफर्रिकुल कै, और जमा किया जाता है, वयुजमा पढ़िए मजूल, और जमा किया जाएगा मुतफर्रिक कई को, अलग अलग जगह के कई को, इदा इत्तहदा सबबु जबकि सबब एक हो, तब भी
अगर मुंह भर के हो गया तो वजू टूट जाएगा। वदमुन, और खून निकला, गलबा अलल बज़ाक, और वो खून निकलने के बाद थूक पर गालिब आ गया, यानी मुंह में खून नहीं निकला और जितना थूक है थूक से ज्यादा रंगीन हो गया, थूक को रंगीन कर दिया तो उससे भी वजू टूट जाएगा। और सावा हो, या खून जो है थूक के बराबर हो गया, यानी जितना खून है जितना थूक भी है तो उतना क्या हो जाएगा। मुंह से खून निकला और सिर्फ लाली नजर आ रही तो वजू तो टूट ही गया, लेकिन अगर बराबर बराबर है थूक और खून तब भी वजू टूट जाएगा। वह नौमुन, और सोने से वजू कैसे टूट जाएगा, सोने से। कैसे सोया इसे लम ततमक्कन फिल मक़अदतु मिनल अर्द, यानी इस तौर पे सोया कि उसका मिक़अद यानी पीछे वाला जो हिस्सा जो हम लोग बैठते हैं, बैठने की जो जगह है वो जमीन से न लगा हो। लम ततमक्कन फिल मिक़अद मिनल अर्द, यानी मिक़अद जो है जमीन से न लगा हो। वइर्तिफ़ाउ मिक़अदतु नाइमुन क़ब्ल इंतिबाही, और सोने वाले का मिक़अद सूरीन उठ जाए जागने से पहले पहले, जागने से पहले पहले, तो इस नींद से भी वजू टूट जाएगा। वल्लम यस्कुत फी जाहिर, अगरचे जाहिर कौल के मुताबिक वह आदमी नींद की हालत में गिरे ना। वह इग़माउन, और पागलपन होने से, इग़माउन नशा वगैरह आने से क्या करते हैं, आदमी जो होता है ना अकल काम नहीं करता, अकल माजूल हो जाता है, इग़माउन। वह जुनून, और जुनून, आदमी ठीक ठाक था पागल बन गया, उससे भी वजू टूट जाएगा। वह सकरुन, नशा आने से, नशा से भी वजू टूट जाएगा। वका का तो बालिगुन यक़दान फी सलाती ज़ाता रुकुइन व सुजूदिन, और रुकू और सुजूद वाली नमाज में बालिग आदमी का कहकहा लगाने से, अगर रुकू और सजदे वाली नमाज में अगर कोई बालिग आदमी क्या कहे, कहकहा लगाएगा तो उससे वजू भी टूट जाए और नमाज भी टूट जाएगी। वलौ तअम्मदल खुरूज बिहा मिन अस्सलात, अगरचे नमाज से निकलने ही के लिए कहकहा क्यों नहीं लगाया, तब भी नमाज में है ना, तब भी अगरचे नमाज से निकलने के लिए कहकहा लगाए, लेकिन कहकहा नमाज में लगा दिया वजू टूट गया। लेकिन रुकू सुजूद अगर कहकहा लगाएगा तो उसे नहीं टूटेगा, इसलिए कि रुकू और सुजूद उसमें नहीं ना है। जी। पढ़े हैं, मर्दों पर औरतों पर नहीं है। वमस्सुन फर्दा बेज़करिन मुंतसिबुन बिला हाइलिन, और मस करना फर्जुन, फर्ज को बेज़करिन, यानी मर्द के सिलसिले में बता रहे मसला कि मर्द को अपने आगे के मकाम यानी शर्मगाह को छूना जो मुंतशिर हो बगैर किसी हाइल के, यानी यूं ही टूट जाता। लेकिन सही कौल के मुताबिक ये है कि वजू नहीं टूटता है। ये जो मसला है ना इमाम शाफी के नजदीक, अगर आदमी अपने फर्ज को ज़कर को छू लेता है तो उससे वजू टूट जाता है, लेकिन हमारे नजदीक नहीं टूटेगा। ठीक है, ये कुल 12 चीजें रही जिनसे वजू टूट जाता है। आगे फसलुन, ये फसल अशरत अशिया ला तनकुजुल वजू, 10 चीजें ऐसी है जिससे वजू नहीं टूटती है। 10 चीजें ऐसी है जिससे वजू नहीं टूटती है। कौन कौन है 10 चीजें? अशरत अशिया ला तनकुजुल वजू, ये 10 चीजें ऐसी है जो वजू को नहीं तोड़ती है। ज़ुहूर दम लम यसिल अन मुहल्लिही, यानी खून का जाहिर होना, ज़ुहूर दमिन, खून का जाहिर होना, लम यसिल अन मुहल्ली, और अपनी जगह से अपने महल से न बहा हो। जैसे हमारे हाथ में कोई सुई चुभाया और जहाँ पे चुभोया उतने दूर तक खून नजर आए, लेकिन अपनी जगह से बहा नहीं है, जब तक कि अपनी जगह पर है वजू नहीं टूटेगा। ठीक है जी। खून का जाहिर होना और मत बहना, नहीं बहना अपने महल से, ये नाक़िज़ वजू नहीं है, वजू को नहीं तोड़ेगा। व सुकूतो लहमिन मिन गैर सैलानी दमी, और गोश्त का काटना बगैर खून को बहे हुए, यानी गोश्त को ऐसे काटा बदन में से कि खून बहा ही नहीं, तब भी वजू से नहीं टूटेगा। गोश्त काट लिया जाएगा लेकिन खून नहीं बहा तो वजू नहीं टूटेगा। कल इराक़िल मदनी, जैसे कोई कल इरक़िल मदनी, कोई इरक़े मदनी होता है, इसको भी हम नहीं जानते। अल्लज़ी युक़ालु लहु रिश्ता, जिसको रिश्ता कहा जाता है,
इर्क़ मदनी कहते हैं कि गोश्त किसी बदन के हिस्से से गोश्त को निकाला जाता है लेकिन खून उससे नहीं बहता है, तो जाहिर सी बात है खून उससे नहीं बहेगा, गोश्त कट गया खून नहीं बहा तो वजू उससे नहीं टूटेगा। व खुरूजो दूदतिम मिन जुरही, जूड़ा माने होता है जख्म, जख्मी से कीड़े का निकलना, जख्म से कीड़े का दूदतुन माने निकलना, कीड़ा, कीड़े का निकलना, इससे भी वजू नहीं टूटेगा। व उज़निन, कान से निकलना, वोन फिर नाक से निकलना, कान से निकला या नाक से निकला, क्या निकला? कीड़ा, तो उससे भी वजू नहीं टूटेगा। व मस्सा ज़करिन व मस्सा इमरातिन, और ज़कर को छूने से और औरत को छूने से भी वजू नहीं टूटेगा। इमाम शाफी के नजदीक अगर कोई आदमी अपनी बीवी को भी छू लेता है ना वजू के बाद तो वजू टूट जाएगा, लेकिन हमारे नजदीक क्या वजू नहीं टूटेगा। व क़ैइन, और उस कै से भी वजू नहीं टूटेगा, ला यमलउल फम, जो मुंह को न भरे, यानी मुंह भर कै होगा तब ना वजू टूटेगा, जब मुंह भर नहीं है तो वजू नहीं टूटेगा। वक़ैन बलगमिन, और बलगम के कै, वलौ कसीनन, अगरचे ज्यादा हो, यानी बलगम जानते हैं ना, कफ अगर ज्यादा भी हो तब भी उसे वजू नहीं टूटेगा। भर मुंह अगर कोई आदमी कफ फेंक दिया निकाल करके तब भी उसे वजू नहीं टूटेगा। व तमायुलो नाइमुन इहतमाला ज़वालु मिक़अदतुहु, व तमायुलो नाइमुन, और सोने वालों का माइल होना, सोने वालों का झुकना इस तौर पर कि उसके मिक़अद का है न जाइल होना एहतमाल रखता हो, यानी कोई आदमी झुक रहा है और ये शक है कि जो हमारे मिक़अद है, सूढ़ीन है, ये जमीन से लग जाएगा, तो ऐसी सूरत में भी क्या कहते हैं वजू नहीं टूटेगा। व नौमुन मुतमक्किनुन, और ऐसा आदमी जो सो रहा है टेक लगाकर, वलौ मुस्निदन इला शैइन, ऐसी चीज से टेक लगाया है, लौ उज़िला, अगर उसको हटा दिया जाए, सकत, तो वो गिर जाएगा, यानी कोई आदमी किसी चीज से टेक लगा के सोया हुआ पीछे से हटा देगा तो आदमी गिर जाएगा, तब भी इसे वजू नहीं टूटेगा जाहिर कौल के मुताबिक, फीहमा, इन दोनों सूरतों में। व नौमुन मुसल्लिन, और नमाजी का सोना, वलौ राकिअन औ साजिदन, अगरचे वो रुकू की हालत में या सजदे की हालत में हो, यानी कोई आदमी नमाज की हालत में अगर सो गया तब भी क्या कहते हैं उसका वजू नहीं टूटेगा। अला जिहती सुन्नत, सुन्नत के तरीके पर, यानी नमाज में जो तरीका है ना उस तरीका पर जो अमल कर रहा, कयाम रुकू सुजूद, तो इस तरीके पर अगर नींद आ गई तो इससे वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर सुन्नत के खिलाफ, यानी नमाज कोई पढ़ रहा था और करवट होकर सो गया, यानी सुन्नत के खिलाफ सोया, तो उससे वजू उसका टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी रुकू या सजदे में सुन्नत के तरीके पर अगर वो सो गया, जो तरीका नमाज का अदा करने का उस तरीका पर अगर नींद भी आ गई है तो उसका वजू नहीं टूटेगा। ठीक है।